Hello and welcome to the Public Administration series run by the Tathagat IAS Institute. This is our 8th episode in the Public Administration series. Previously, we have discussed the success stories of various IAS officers. As a human being, as an individual or as a family man, it is our endeavor to strive towards excellence. As a family member, as a head of the family, or as a citizen of the country, it is always our constant endeavor to improve ourselves, to provide for our family, to provide better things to our family. This is our endeavor. We work in an ecosystem provided by administration, provided by the various governments, and that ecosystem basically decides the pace of our individual development, family development, or a citizen's development. So that ecosystem basically is designed, that ecosystem, whether it is congenial or not, is decided by the administrators, is decided by the policy makers, and that is in that particular context we discussed previously in the previous video the significance of administration. We started our discussion on the significance of administration. We discussed the success story of Poma Toduji, Surinder Singh Solanki ji, through those success stories we understood how the creative and innovative approaches of bureaucrats, how the creative and innovativeness of bureaucrats bring about a positive change, a meaningful change in the lives of people. By bringing that positive change, they basically increases the trust of people in the administration, and administration brought more closer to the people, and that is basically the endeavor of today's government. The slogan is given by the government that maximum governance, minimum government, maximum governance. The slogan basically is translated by the actions of such bureaucrats into the reality by creating some pathways to the development of the people, development of the society. So by continuing our discussion on the topic significance of public administration, Sardar Patel said that the civil service or the Indian administrative service is the steel frame of the society. In this particular chapter, we are going to discuss what important role does this administration plays, and in that particular context, this sentence is very important given by the Sardar Patel that the civil service will be the steel frame of the India. So, to understand this particular sentence, we have discussed the success stories in the previous video. IAS officers, or for that matter any public servant, any administrative officers, it is his or her constant endeavor to improve himself or herself and to serve the nation. If I ask you कि भाई आप किस लिए सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो then there might be a common answer from you guys that हम क्या है कि देश की सेवा करना चाहते हैं, देश को, समाज को कुछ बेहतर राह के ऊपर लेके जाना चाहते हैं. सो ये जो एंडेवर है, ये जो प्रयास आप करने वाले हैं, उसके लिए कुछ मीन्स अपनाएंगे आप, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में रह करके आप वहां पे काम करेंगे. तो उसी कंटेक्स्ट में ये सेंटेंस बड़ा रिलेवेंट है. उस समय पे सरदार पटेल जी ने सेंटेंस कहा था, और हम फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज भी सरदार पटेल जी को कहते हैं कि उनका एक कॉन्स्टेंट एक प्रयास था कि ऑल इंडिया सर्विसेज को स्ट्रेंथन किया जाए. काफी सारा इसके ऊपर नेगेटिव व्यूज भी थे, काफी सारा क्रिटिसिज्म भी था, लेकिन आज हम देखते हैं कि उनके प्रयासों के द्वारा बोलो या फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के प्रयासों के द्वारा एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो या फिर एक एडमिनिस्ट्रेशन, हमें एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन आज भारत में देखने को मिलता है. अब ये एडमिनिस्ट्रेशन कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना एफिशिएंट होगा, कितना इफेक्टिव मैनर में काम करेगा, वो तय करता है कि भारतीय जनता, भारतीय जो सिटीजन है, इंडियन सोसाइटी जो है, वो किस प्रकार से डेवलप करेगी, किस प्रकार से वो आगे बढ़ेगी, किस प्रकार से जो चीजें, कुछ नेगेटिव चीजें हर एक समाज में होती है, सोसाइटी में होती है, कैसे उनको श्रग ऑफ करके हम आगे बढ़ेंगे. तो उस कंटेक्स्ट में ये सेंटेंस था कि सिविल सर्विस विल बी द स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन सोसाइटी. आज हम देखते हैं तो एरे ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, मल्टीपल सर्विसेज हमें गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू प्रोवाइड की जाती है. अब ये जो सर्विसेज है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लिए रोड वगैरह, रोड प्रोवाइड करना, एयरपोर्ट प्रोवाइड करना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हो, या फिर अपने घर में जो पानी आता है वो पानी आना कितना स्वच्छ आ रहा है, ये सारे चीजों में कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का एक रोल है. कितना बेहतर ढंग से वो अपना काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, कितने अपने जो भी वादे होते हैं सरकार के, वो कितने मात्रा में खरे उसके ऊपर, प्रॉमिस के ऊपर उतरते हैं, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेशन कितने इफेक्टिव ढंग से काम कर रहा है. तो उस कंटेक्स्ट में सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट चीज रीड कीजिएगा कि इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द सोसाइटी, सो इट इज ए स्टेबिलाइजिंग फोर्स ऑफ ए सोसाइटी, स्टेबिलाइजिंग फोर्स ऑफ अ नेशन. ये स्टेबिलाइजिंग फोर्स, अब ये स्टेबिलाइजिंग फोर्स से क्या मीनिंग है? स्टेबिलाइजिंग फोर्स यानी कि समाज जो होता है, देखो समाज, हमारा समाज हो या फिर कोई भी हम समाज देखते हैं, तो समाज
अलग अलग रिलीजन के लोगों द्वारा, अलग अलग कास्ट, वहां पे हम अलग अलग फ्रैक्चर्स हमें समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर देखने को मिलते हैं। अब ये फ्रैक्चर्स जो है ये एक तरीके से डाइवर्सिटी में यूनिटी लाएंगे कि ये आपके कल्चर को रिच बनाएंगे, एक वो पर्सपेक्टिव, और दूसरा ये कि ये जो भी अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कास्ट जो है, ये क्या समाज में और ज्यादा मात्रा में एक डिवाइड पैदा करेंगे। दो चीजें हो सकती है, दो चीजें संभव है। और हम तो जानते हैं कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मल्टीपल रिलीजन्स, मल्टीपल कास्ट, मल्टीपल एथनिक ओरिजिन्स, मतलब इतने सारे अलग अलग एथनिसिटी के, अलग अलग रिलीजन के लोग हमारे यहाँ पे साथ में एक समाज के रूप में रहते हैं। तो ऐसे में इस समाज में अगर अपन देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का एक रोल है कि सारे जो भी घटक है समाज के, अलग अलग धर्म के हो, जाति के हो, इनको एक बाइंडिंग फोर्स की तरह एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक रखने का काम करता है। जैसे हम कोई परे नहीं है इस चीज से, हम कोई ऐसे आइसोलेशन में नहीं है कि हमारे यहाँ पे कम्युनल राइट्स वगैरह से हम दूर नहीं है। भारतीय सोसाइटी ने, इंडियन सोसाइटी ने इंडिपेंडेंस से लेकर तो अब तक जो हमारी जर्नी रही है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग रीजन्स में हमने कम्युनल राइट्स देखे हैं। साथ साथ अगर कम्युनल राइट के एंगल से देखा जाए तो एक वो बाइंडिंग फोर्स का, एक यूनिटी वाला फोर्स का काम एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे करता है, एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है समाज को। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो समाज में अलग अलग स्टेटस के लोग होते हैं। अगर स्टेटस की मैं बात करूं, इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है, सोशल स्टेटस हो सकता है, और इन समाज ऐसे स्टेटस के कारण हो सकता है कि कुछ डिस्पैरिटीज है और उन डिस्पैरिटीज के ऊपर बेस्ड कोई डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। तो ऐसे में अलग अलग लोगों से बने हुए समाज में, और खास करके भारतीय समाज में, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन जो है, इनके बीच में कहीं ना कहीं जो एकदम लोअर रंग पे ऊपर बैठा हुआ है, या फिर मान लो कि एकदम वीकेस्ट ऑफ द वीक है, जिसको हम मान लो लाइन में, कतार में आखिरी पोजीशन पे वो खड़ा है, तो उनको कैसे आगे लाया जाए, कैसे उनको कोई बेहतर सेवाएं प्रदान की जाए, कैसे उनको बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए ताकि वो मेन स्ट्रीम का पार्ट बन सके, कैसे गरीबों को पॉवर्टी ट्रैप से बाहर निकाला जाए। ये इसके लिए एक सतत प्रयास, एक कांस्टेंट एंडेवर वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का रहता है। और उसी कंटेक्स्ट में सेंटेंस है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टेबलाइजिंग फोर्स ऑफ द सोसाइटी, कि समाज के अंदर की जो अलग अलग घटक है उनके बीच में एक यूनिटी लाना, और साथ साथ अगर इकोनॉमिकल स्टेटस में हमें एक वैरायटी दिख रही है, वहां पे काफी डिस्पैरिटी दिख रही है, तो उनको, वो जो कतार में आखिरी लाइन पे है, आखिरी में है, उनको कैसे आगे लाना। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज अ रोल टू प्ले, एन इंपॉर्टेंट रोल एंड डिफाइनिंग रोल टू प्ले इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड पॉलिसी इवैल्यूएशन. What policy making is, what policy implementation is, we have previously discussed it in the definition of the public administration. So पॉलिसी फॉर्मेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, बेसिकली फिर से एक बार रिविजिट कर लेते हैं उस चीज को, क्या मीनिंग होता है पॉलिसी फॉर्मेशन का, कि जैसे देश के लिए क्या बेहतर चीजें हो सकती है, एक रोड मैप क्या है डेवलपमेंट का, तो उसके लिए एक विजनरी प्लानिंग भी करते हैं कि बस आज की हम चीजें, आज की प्रॉब्लम्स देख करके हम प्लानिंग नहीं करते हैं, 10 साल बाद भारत कहां पे होगा, 10 साल बाद एज ए सोसाइटी हम कहां पे होंगे, उस समय पे क्या चैलेंजेस आएंगी, उसको लेकर के हम पॉलिसी फॉर्मेशन वहां पे करते हैं। और पॉलिसी फॉर्मेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक डिसाइसिव रोल होता है। एफ ए निग्रो ने हमें बताया था, एफ ए निग्रो की डेफिनेशन याद करिएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वहां पे भी हमें समझ में आता है। एल डी वाइट ने भी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन या फिर पॉलिसी मेकिंग में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रोल को समझाया था। तो उसी कंटेक्स्ट में एक और ये सेंटेंस बेसिकली बताता है कि सिग्निफिकेंस क्या है, कैसा है एडमिनिस्ट्रेशन का। अलग अलग एंगल से, अलग अलग पॉइंट के माध्यम से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके अंदर अलग अलग पर्सपेक्टिव्स डेवलप हो जाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिग्निफिकेंस को लेकर। कि जैसे अगर मैं पूछूं कि आपके जीवन में आपके जो रोल मॉडल है उनका क्या सिग्निफिकेंस है ना, कि क्या महत्व है, तो आप बताएंगे कि हाँ, इन्होंने मुझे भारी मात्रा में मोटिवेट किया, कि उनका एक हार्डवर्क जैसा वैल्यू है, एम्पैथी वाला वैल्यू है बोलो किसी का, या फिर मान लो कि एक कंसिस्टेंसी वाला वैल्यू है, ये चीजें उन्होंने सिखाई आपको, और आप उसके उन्हीं के पाथ के ऊपर बोलो, या फिर उनको एक इमिटेट करते हुए अपने जीवन को, अपनी लाइफ को आप आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिग्निफिकेंस को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सोसाइटी में, और खास करके इंडियन सोसाइटी में, क्या रोल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो अब तक हमने 3 अलग अलग चीजें देखी कि स्टील फ्रेम ऑफ द सोसाइटी कैसे एक बैकबोन की तरह काम करता है, कैसे एक स्टेबलाइजिंग फोर्स की तरह काम करता है, और कैसे वो रोड मैप, एक फ्यूचर रोड मैप जो होगा डेवलपमेंट का, वो कैसे ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है, कैसे उसको इंप्लीमेंट करता है। नेक्स्ट चीज की तरफ आते हैं कि प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव कवर टू द सोसाइटी।
व्हाट डज इट मीन? ये सेंटेंस, ये जो वर्ड है, कीवर्ड प्रोटेक्टिव कवर, क्या मीनिंग है इसका? कि जैसे समाज के अंदर थोड़ी देर पहले मैंने बोला आपको कि गरीब लोगों की संख्या आज की डेट में काफी है। 20 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे है। एग्जैक्ट आंकड़ा आप पता कर लीजिएगा कितना, एक एग्जैक्ट आंकड़ा है, 20 करोड़ से ऊपर वो आंकड़ा आपको दिखेगा। और पॉवर्टी मतलब क्या? कि आपके पास इतना कम इनकम कि आप बेसिक नेसेसिटीज जो है आपकी, वो बेसिक नेसेसिटीज तक आप पूरी नहीं कर पा रहे हो। क्या होती है बेसिक नेसेसिटीज? कि जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग हो गया, ये बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी आपके पास रिक्विजिट इनकम ना होना। अब ऐसे भी लोग हैं समाज के अंदर, देश के अंदर, तो इनके लिए, इनके बेहतरी के लिए, इनके लाइफ में कुछ एक मीनिंगफुल चेंज आए। और साथ साथ जो बाकी भी लोग हैं, जैसे ये जरूरी नहीं कि अगर पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं बस उतने ही गरीब है। अब एक गरीबी अपन जब देखते हैं तो एकदम एक्सट्रीम पॉवर्टी की हम बात करते हैं, उसके बाद जस्ट अबव पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं। तो ऐसे में उन समाज के अलग अलग घटकों को एक प्रोटेक्टिव कवर देना अलग अलग सर्विसेज के माध्यम से। क्या सर्विसेज हो सकती है? बेटर एजुकेशन हो सकता है, बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज हो सकती है, फूड जो डिलीवरी करी जाती है अपने यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से, वो चीजें वहां पे हो सकती है। तो ये जो मल्टीट्यूड ऑफ सर्विसेज जो अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दी जाती है, तो इससे बेसिकली एक समाज को प्रोटेक्टिव कवर मिलता है। वही सेंटेंस का वहां पे मीनिंग है।